everyone. This is your science teacher Deeksha and I welcome you all to our lesson number 4, the world of metals and non-metals. So this is our part 4. Students, if you remember, let's have a quick recap of what we did in our previous sessions. We now know the properties of materials. We also know the process of rusting. Okay, so rusting में students क्या पढ़ा था हमने? Iron, which is a metal, how it reacts with air and water. Now is the time that we understand how air and water have effect on different metals and non-metals. So we are going to study some of the reactions which are extremely important. So I hope you are paying attention, students, because this one is an important class. Later in the lesson, students will understand the differences between metals and non-metals. So let's get started, students. We are going to understand the effect of air and water on other metals, and the first metal which we are going to take up is magnesium. Now students, magnesium is a metal which comes in this ribbon form. ठीक है, इस तरह के ribbon form में ये मिलता है हमें मार्केट में. हमें क्या करना है हमारी एक्टिविटी के लिए? हमें लेना है एक छोटा सा पीस रिबन का, मैग्नीशियम रिबन का, अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर. एंड फर्स्ट स्टेप इज that we clean this magnesium ribbon with the help of a sandpaper. Why we need to clean it? Because magnesium, like other metals, is very reactive. तो मैग्नीशियम के ऊपर ऑलरेडी एक लेयर होती है, मतलब मैग्नीशियम ने ऑलरेडी ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर में उसके साथ रिएक्ट कर लिया है, और वो लेयर क्या करती है, फर्दर मैग्नीशियम के रिएक्शन को प्रिवेंट करती है. तो आपके जो लेयर है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऊपर लेयर है, उसके नीचे अभी भी मैग्नीशियम मेटल है, but we need to remove that layer first so that we come to know the reaction of magnesium metal with air. Okay, so the first step is to remove the layer with the help of a sandpaper. So when you rub the surface, then you get the pure magnesium metal. Now we'll take this ribbon and we have to burn it with the help of this Bunsen flame. तो आपको यहाँ पे फ्लेम लेनी है स्टूडेंट्स, कैंडल फ्लेम, बंसन फ्लेम, और आपको यहाँ टोंग्स की हेल्प से, so these scissor like instruments is they are known as tongs. Okay, a pair of tongs, it's holding the magnesium ribbon, ठीक है, and you have to take it near this flame. Clear? And after which, students, you will observe a white dazzling flame is coming from the magnesium ribbon. तो ये white dazzling flame जो है, ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे magnesium ribbon has caught fire. तो यहाँ मैग्नीशियम रिबन ने जो फायर कैच की है, बेसिकली देयर इज अ रिएक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ. व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हो रहा है रिएक्शन. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस रिएक्शन इज कंप्लीट, यू विल सी द एशेज, बिकॉज द मैग्नीशियम इज बर्निंग, सो व्हाइट पाउडर और एशेज आर कलेक्टेड इन this glass plate. Okay, so यहाँ glass plate पे हमारे पास क्या आ गया, white powder collect हो गया, that is ashes. Now we have to take these ashes or the white powder and we have to pour small amount of water here. Basically we are going to dissolve this white powder in water. So when you dissolve this white powder in water, here we have to test. ठीक है, here we have to test this solution which we have got. तो यहाँ क्या टेस्ट करना है स्टूडेंट्स? नेचर. व्हाट डू यू मीन बाय नेचर? एसिडिक और बेसिक नेचर. तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हम एसिडिक और बेसिक नेचर को कैसे टेस्ट करते हैं? बाय अप्लाइंग और बाय टेकिंग ब्लू और रेड लिटमस पेपर हियर. सो वील डिप द ब्लू लिटमस पेपर एज वेल एज द रेड लिटमस पेपर इन दिस सोल्यूशन एंड देन सी if there is a color change or not. Let's have a look what are our observations. So magnesium ribbon burns with a white dazzling flame, and that's how it changes into a white powder. So this white powder is collected over here. तो इस वॉच ग्लास में जो व्हाइट पाउडर आया है उसके हमने क्या डाला? पानी डाला, and we have made a solution. Now we dipped red litmus paper as well as blue litmus paper in this solution. So what results we get? The blue litmus paper doesn't show any color change, but the red litmus paper turns blue. So how does it turn, students? If red litmus paper turns blue, that means that the solution which you have taken is basic in nature, isn't it students? यही हमने समझा था हमारे previous lesson में, acidic, basic and neutral. जब भी red litmus paper blue में change होगा, इसका मतलब जो solution आपके पास है वो basic है. ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे? So our conclusion is
the white powder obtained on burning magnesium is what? Magnesium oxide. तो बेसिकली स्टूडेंट्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में एक रिएक्शन होता है जिससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है. आई हैव यूज्ड द सिंबल्स फॉर दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मतलब ये मैग्नीशियम क्या है? Mg, और ऑक्सीजन होता है O2. इससे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव यू अ व्हाइट पाउडर विच इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड. इज दैट क्लियर? नाउ when you are making a solution of magnesium oxide with water, what you get? You get a new substance which is known as magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide. And this magnesium hydroxide is basic in nature. ठीक है, because it turned red litmus into blue. Correct students? So हमें क्या पता चल रहा है? Because metals are what? यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये क्या है? एक मेटालिक ऑक्साइड है ना? जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं. सो मेटालिक ऑक्साइड्स आर व्हाट? Basic in nature. Now this point is something which you need to keep in mind. Okay? जो भी मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्साइड्स. आयरन का अगर ऑक्साइड बनेगा तो हम क्या कहेंगे? आयरन ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, तो ये सभी क्या है? मेटल से. कॉपर फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड. क्लियर? तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में. जैसे ही आप उनका सोल्यूशन बनाओगे उन ऑक्साइड्स का, वो आपको बेसिक नेचर शो करेंगे. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर मेटल व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज सोडियम. अब सोडियम एक ऐसा मेटल है जो एयर के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है, जस्ट लाइक दिस. कैन यू सी? अगर सोडियम एयर या वाटर के कांटेक्ट में जरा सा भी आता है, सो इट कैचेस फायर इंस्टेंटली. इस तरह का रिएक्शन होता है. ठीक है, तो इतना विग्रस रिएक्शन है दैट यू हैव टू कीप सोडियम इन केरोसिन. नाउ केरोसिन इज व्हाट? इट्स एन ऑयल. ओके, तो ऑयल क्या करता है? सोडियम के ऊपर एक लेयर लगा देता है जिससे सोडियम हवा के और पानी के कांटेक्ट में आसानी से नहीं आता है. क्लियर? सो it reacts vigorously with air or oxygen present in air and water, and a lot of heat is generated in this reaction. तो बनता यहाँ पे क्या स्टूडेंट? सोडियम ऑक्साइड ही बनेगा. ठीक है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा. बट इतना ज्यादा विग्रस रिएक्शन होता है कि हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है. सो वी कीप इट स्टोर्ड इन केरोसिन. ठीक है, तो केरोसिन ऑक्सीजन और सोडियम का कांटेक्ट नहीं होने देता है, तो इतना विग्रस रिएक्शन नहीं होता है. क्लियर? बिकॉज सोडियम इज यूज्ड इन मेनी टेस्ट्स. स्टूडेंट्स, जब आप अपने हायर क्लासेस में जाएंगे आप सोडियम को बेसिकली यूज करेंगे इन डिफरेंट टेस्ट. तो सोडियम इतना विग्रस रिएक्शन देता है कि आप सोडियम को अपनी लेबोरेटरी में ऐसे ओपन में रख ही नहीं सकते. तो सोडियम हमेशा बीकर्स में केरोसिन के अंदर पूरी तरह इमर्स्ड रहता है. ठीक है, ऑल राइट. Now students, here we take one more example, one more activity we are going to do, and now we are going to take a substance known as sulfur. तो sulfur बहुत बार सुना था हमने students इस lesson में. हमने sulfur का pea size ऑब्जेक्ट लिया था, थोड़ा सा उसको पी साइज पार्टिकल्स लिए थे और फिर हमने उसके साथ बहुत सारे टेस्ट किए थे. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट किया था हमने, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज में हमने सल्फर का यूज किया था. बेसिकली स्टूडेंट्स, सल्फर इज अ येलो कलर्ड पाउडर जस्ट लाइक दिस. यू कैन सी इस तरह का येलो कलर पाउडर होता है एंड इट्स अ नॉन मेटल. ओके, तो अब आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स कि हम क्यों नॉन मेटल कह रहे हैं. बिकॉज इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन विच वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस क्लासेस. तो हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने आयरन, अभी मैग्नीशियम और सोडियम का रिएक्शन देखा था. सल्फर का रिएक्शन बहुत डिफरेंट होगा. कैसे करना है स्टूडेंट्स? यू हैव टू टेक द सल्फर पाउडर इन दिस deflagellating spoon. This deflagellating spoon is a special spoon. It's also known as combustion spoon. It has a long, you can say, handle. Long handle इसलिए दिया है because we are burning sulfur. So while burning, you will see that there is a production of gaseous products. Okay? तो यहाँ पे gaseous products मतलब कि when you are burning sulfur in air,
you will see that gas is being produced. तो वो गैस जब प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट्स, तो आपको इसीलिए लॉन्ग स्पून लेना है क्योंकि हमें उस गैस को कैप्चर करना है, ठीक है। तो ये आपको कंबस्शन की जो फ्लेम और उस गैस से दूर रखेगा, दैट्स व्हाई अ लॉन्ग हैंडल इज गिवन टू इट, तो आप इसे प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे। सो यू हैव टेकन सल्फर पाउडर इन दिस deflagrating spoon and now what you need to do, you have to heat sulfur, okay। जैसे आप हीट करेंगे, बेसिकली यू आर हीटिंग इट इन एयर, और एयर में हीट करने का मतलब क्या होता है कि हम ऑक्सीजन में इसको रिएक्ट कर रहे हैं। बेसिकली सल्फर एंड ऑक्सीजन विल रिएक्ट। as soon as sulfur catches fire, okay, you have to take this deflagrating spoon and put the whole spoon in this gas jar and put the lid, okay, close the lid। तो यहाँ पे लिड जैसे ही आप बंद करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ये पूरा लिड में गैसेस फिल हो गई है। तो ये गैसेस क्या है स्टूडेंट्स, सल्फर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विच इज नोन एज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस पूरे गैस जार में भर जाती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी हमें टेस्ट और भी करना है, बिकॉज दिस गैस शुडंट एस्केप, ठीक है, वरना टेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस deflagrating, जैसे ही आपका पूरा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, द होल पाउडर इज बर्न्ड, ठीक है, आपको क्या करना है, लिड धीरे से हटाना है और deflagrating स्पून को निकालना है, और क्विकली आपको इसमें वाटर ऐड करना है, ठीक है। क्या किया हमने, deflagrating स्पून को निकाला और वाटर ऐड कर दिया इस गैस जार में, लिड क्लोज करके पूरा वाटर को क्या करा हमने, मिक्स करा। So basically what we are trying to do here, the product sulfur dioxide gas which is formed, it is reacting with water to give you something else। हमने मैग्नीशियम के केस में भी यही किया था ना स्टूडेंट्स, we took the powdered magnesium oxide and we added water to it so that we get magnesium hydroxide and we can test it for acidity or basicity, clear। यहाँ पे भी हमें स्टूडेंट्स सेम यही करना है, सल्फर को हमने क्या किया, बर्न किया, उसका जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे हमने पानी में डिसॉल्व किया। नाउ वी विल चेक वेदर दिस इज एसिडिक और बेसिक। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर टू द गैस जार इज एसिडिक एंड मार्क इट इंपॉर्टेंट। सो व्हाट डज दिस टेल यू, ये आपको ये बताता है स्टूडेंट्स कि सल्फर और मैग्नीशियम दो अलग अलग चीजें हैं। मैग्नीशियम का जो रिएक्शन था ऑक्सीजन से, उससे हमें क्या मिला, एक ऐसा सोल्यूशन बनाया हमने जो बेसिक था। सो वी सेड दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट हियर यहाँ पे जो सल्फर ने हमें दिया है सोल्यूशन, वो क्या है, एसिडिक, क्योंकि क्या किया उसने, इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड एंड देयर वाज नो चेंज ऑन द रेड लिटमस पेपर, क्लियर। So that means students that non-metallic oxides are acidic in nature, ठीक है। तो हम यही conclude करते हैं। तो हुआ क्या students, on burning sulfur in air, that is oxygen, you get sulfur dioxide gas, clear। Now when you added water to sulfur dioxide gas, what did you get, you get sulfurous acid, ठीक है। तो यही सल्फ्यूरस एसिड आपको क्या देता है, एसिडिक नेचर शो करता है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है, क्लियर। सो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, दिस इज व्हाट वी आर हियर टू लर्न। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या कर रहे हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस को ही तो पता कर रहे हैं। तो हमने जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी स्टूडेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स व्हिच वी सॉ, द 7 प्रॉपर्टीज, वो क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शंस में मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे डिफरेंट हैं। तो हमने ये डिफरेंस देख लिया स्टूडेंट्स, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड वन मोर एलिमेंट दैट इज फॉस्फोरस विथ वाटर। तो हमने एयर के साथ देख लिया, ऑक्सीजन के साथ तो देख लिया सल्फर का रिएक्शन, फॉस्फोरस का रिएक्शन कैसा होता है वो भी देखते हैं। So sulfur with oxygen gave you sulfur dioxide gas, ठीक है, but with water sulfur shows no reaction, मतलब सल्फर का पानी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। But phosphorus on the other hand, it reacts with oxygen like vigorously, like what we saw in the case of sodium, ठीक है। सोडियम तो एक मेटल था, सोडियम ने पानी और एयर के साथ विग्रसली रिएक्ट किया था। यहाँ फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ इस तरह विग्रसली रिएक्ट करता है, आप देख सकते हैं इतना सारा स्मोक और इट कैचेस फायर बेसिकली। तो फॉस्फोरस को ऑक्सीजन से कट करने के लिए या फिर उसकी प्रेजेंस में ना रहे वो क्या करते हैं,
phosphorus is immersed or it is stored in water. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोडियम को हम वाटर में स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर ऑल्सो विग्रसली. ओके, वाटर और एयर दोनों के साथ ही उसका विग्रस रिएक्शन है. बट फॉस्फोरस एंड सल्फर दे डोंट रिएक्ट विद वाटर. ठीक है, तो इसीलिए इन्हें हम वाटर में स्टोर कर सकते हैं. सो फॉस्फोरस आर ऑलवेज स्टोर्ड इन वाटर बिकॉज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे. सो सब्सटेंसेस लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस they behave differently when they come in contact with air and water. तो यहाँ आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन डिफरेंट है. नाउ वी हैव अ होल समरी. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. This is the complete summary of how metals are different from non-metals. Let's have a quick look. So metals are lustrous, non-metals are डल इन अपीयरेंस. ठीक है, हमने सल्फर को देखा, सल्फर का पाउडर डल था. ठीक है, पर वही आप गोल्ड, सिल्वर, आयरन के सर्फेसेस देखें कितने शाइनी होते हैं. यूजुअली दे आर हार्ड, यूजुअली दे आर सॉफ्ट. सो आप देख सकते हैं सल्फर को हम कैसे क्रश कर सकते हैं. इट कम्स इन द पाउडर्ड फॉर्म. दे आर मेलिएबल, नॉन मेलिएबल और ब्रिटल होते हैं. डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल. क्लियर. सोनोरस, नॉन सोनोरस, तो पाउडर्ड फॉर्म में कहाँ आपको साउंड नजर आपको सुनाई देगी, तो साउंड कोई नहीं होती है. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स है. सो गैशियस स्टेट में ऑब्वियसली यू कांट हैव ऑल दीज प्रॉपर्टीज. गैस मेलेबल हो ही नहीं सकती है. ऑब्वियसली यू कांट सी गैसेस. आप उसको शीट्स और वायर्स में कैसे ड्रॉ करोगे. ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट non-metals are poor conductors of heat and electricity. Finally, their oxides are basic in nature, but their oxides, non-metal के oxides जो होते हैं वो acidic होते हैं. ये हमने clearly देख लिया हमारी activities में. The examples, iron, aluminium, copper, potassium, calcium, gold, silver, ये सभी क्या है, metals हैं. Non-metals में क्या आता है, sulfur, phosphorus, ये अभी हमने देखा था. याद रखना स्टूडेंट्स, पोटेशियम इज अ मेटल. ओके, फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल. क्लियर. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी क्या है, हमारे नॉन मेटल्स है. हम और भी नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे. रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्लीज 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 रिमेंबर दिस, वुड, रबर, ये ना तो मेटल होते हैं ना नॉन मेटल होते हैं. वैसे ही नाइलॉन, स्टोन, ये सभी क्या है, मेटल्स भी नहीं है और नॉन मेटल्स भी नहीं है. ये होते हैं मिक्सचर्स या फिर पॉलीमर्स होते हैं. तो ये आप बाद में अपने आने वाली हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. अभी के लिए आपको क्या समझना है, दीज आर मेटल्स एंड दीज आर नॉन मेटल्स. ओके, वुड इज अ मिक्सचर, आप उसको इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं रखेंगे. रबर भी ना तो मेटल होता है ना नॉन मेटल होता है, ये ध्यान रहेगा सबको. ठीक है, so metals and non-metals are strictly these. There are other metals and non-metals names also you will gradually come to know. But जब भी wood, rubber, stone, nylon इस तरह की चीजों की बात आएगी, आप उन्हें ना तो metals की कैटेगरी में रखेंगे ना ही non-metals की कैटेगरी में. ये ध्यान रहेगा. ठीक है, चलते हैं आगे स्टूडेंट्स. There is a really important thing which you have to discuss. These metals and non-metals are known as elements. What is an element? It's a substance which is in the purest form or the simplest form which cannot be broken down into further simpler substances. मतलब ये खुद ही इतना सिंपल है, इसको और आप डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे कि मेटल्स में अब अगर हम ले आयरन, सो आयरन की एक एल्मिरा है. आयरन की एल्मिरा किससे बनी है, आयरन के पार्टिकल्स से. तो आयरन के पार्टिकल्स को क्या आप और सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं, नहीं. आयरन खुद ही सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस है. वैसे ही नॉन मेटल में अगर आप ऑक्सीजन ले, तो ऑक्सीजन को क्या हम और सिंपलर पार्टिकल में तोड़ पाएंगे, नहीं. ऑक्सीजन खुद ही सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस है. तो एलिमेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यू विल गोइंग टू लर्न अबाउट एलिमेंट्स, अदर सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स, मिक्सचर, सबके बारे में आप पढ़ोगे इन योर हायर क्लासेस. अभी के लिए आपको क्या समझना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, एलिमेंट्स हैं ये. ठीक है, मेटल्स आर ऑल्सो एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स आर ऑल्सो elements. What are elements? These are substances which are in their simplest form which cannot be broken down easily. Okay, correct? So my dear students, hopefully you understand this now. Now let's have a look at a very important question. Are non-metals essential in everyday life?
we have seen so many applications of metals, but we do have some non-metals which have wide range of applications, and also students, they are basically essential for life too. हमारे survival के लिए भी बहुत important होते हैं ये non-metals. So let's have a look at them one by one. Okay, so the first one is oxygen. Now this oxygen, students, is a non-metal. Okay, oxygen is very very important for respiration, breathing. हमारी body, हम humans, animals, हम सब survive ही इसलिए कर पा रहे because we all breathe in oxygen for our you can say biological processes. हमारे biological processes, हमारी body को energy मिलना, बहुत सारी चीजें oxygen की वजह से होती है. Then we have nitrogen, another non-metal which is used in fertilizers. तो students, आपने NPK इस fertilizer के बारे में सुना होगा. N stands for nitrogen. Fertilizer क्या करते हैं students? हमारे जो भी crops या plants की growth है उसे healthy रखते हैं, faster growth होती है और healthier growth होती है. ठीक है. Now another non-metal जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है पर अब आपको याद रखना है, iodine is also a non-metal which is used as an antiseptic. So basically students, iodine एक brown color solution होता है जो medicinal purposes के लिए use होता है. Antiseptic है मतलब क्या हुआ इसका? एंटीसेप्टिक का मतलब है दैट इफ यू हैव एनी ओपन वूंड, अगर आपको कहीं लगी है और ओपन वूंड है तो वहां स्टूडेंट्स इन्फेक्शन का एक हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए. क्लियर? सो to prevent your body from having any kind of infections because of this open wound, we can apply iodine solution over that. Okay, तो हम क्या करते हैं, iodine solution की हेल्प से आपकी जो यू कैन से इन्फेक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल में कर सकते हैं. एंड फाइनली वी हैव क्लोरीन. क्लोरीन के बारे में भी हमने नहीं सुना था, नॉन मेटल है क्लोरीन भी, ये भी याद रखना है आपको. क्लोरीन इज अ नॉन मेटल विच इज यूज्ड एज यू कैन से वाटर डिसइंफेक्टेंट या वाटर प्योरिफिकेशन के लिए काम आता है. तो क्लोरीन टैबलेट्स होती है स्टूडेंट्स जो स्विमिंग पूल में डाली जाती है या वाटर टैंक्स जहां से हमारा पानी आता है उसमें भी डाली जाती है. बिकॉज वाटर अगेन वाटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन इंक्रीज और विच कैन मल्टीप्लाई इफ वी ह्यूमंस गो फॉर स्विमिंग. ओके, तो हम स्विमिंग के लिए जब जाते हैं स्टूडेंट्स तो पानी में बहुत सारे लोग जाते हैं एंड अगेन वी कैन हैव इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दैट वाटर. तो बैक्टीरियल ग्रोथ को, और आप कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है या माइक्रोब्स को किल करता है क्लोरीन. तो क्लोरीन इज वाटर प्योरीफायर, वाटर को प्योरीफाइड फॉर्म में रखता है, मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल रखता है. ठीक है. अब एक और स्टूडेंट्स हमारा नॉन मेटल है जिसे हम जानते हैं कार्बन. ना कार्बन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. व्हाई? Because if you see human body, students, our whole body is made up of tissues, muscles, cells. तो ये जो टिश्यूज होती है स्टूडेंट्स, ये किससे बनती है? प्रोटीन से. हमारी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से और फैट से. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारी ह्यूमन बॉडी के. एनिमल बॉडी जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये पाए जाते हैं. ना स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स ये बहुत बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स आप कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. और ये सभी मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है कार्बन. लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, फैट में लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन होगी. कार्बन 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 के बहुत सारे पार्टिकल्स अटैच या लिंक्ड होंगे. सो जिससे हमारी बॉडी बनी है, टिश्यूज से, मसल से, मतलब प्रोटीन से. प्रोटीन किससे है? मतलब प्रोटीन के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? कार्बन होता है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग carbon is a building block of life. If I say this will not be untrue. Okay, this is absolutely correct. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की नॉन मेटल्स भी हमारे इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है, एग्रीकल्चरल यूज में काम आता है. देन ब्रीदिंग मतलब सर्वाइवल के पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव अदर नॉन मेटल्स ऑल्सो विच आर सर्विंग a great amount of, they have a wider applications which you will learn in your higher standards. बट ये जो मेजर नॉन मेटल्स थे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. अब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की नॉट ओनली मेटल्स बट नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव देयर एप्लीकेशंस एंड their usage in our everyday life. Clear? All right, students. So here we come to the end of this session.
What did we learn students? हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. We understood the effect of air and water on some metals and some non-metals. तो हमने यहाँ पे बहुत सारी reactions study की थी students. ये reactions बहुत important है, ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है, because this is something, these are the differences in metals and non-metals based on their chemical reactions. Basically here we are talking about the difference in the chemical properties of metals एंड नॉन मेटल्स. तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि मेटल्स और नॉन मेटल्स अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं. तो यही हमने समझा था कि एयर और वाटर के साथ कितना डिफरेंट है उनका रिएक्शन. डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फाइनली हमने एक टेबल देखी थी जिसमें हमने उनकी फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज को हमने एक साथ लिखा था ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए दैट व्हाट आर द पॉइंट्स विच आर देयर इन मेटल्स एंड व्हाट आर द पॉइंट्स अंडर non-metals and how they are different from each other. And finally students, we concluded our session today by discussing about the applications of non-metals in our everyday life. So hopefully students you enjoyed watching this one, but please stop here. Don't pause your video or don't stop the video because we have some of the questions which will assess your progress. आपको समझ में आ जाएगा कि समझ आया कि नहीं, ठीक है? So let's have a look at the first one. The nature of metallic oxides and non-metallic oxides respectively. मतलब क्या हुआ? That you have to first check the nature for metallic oxide and then non-metallic oxide. तो एक बार देख लेते हैं students, metallic oxide का nature क्या था? We took the metal magnesium, we burnt it, that means its reaction with oxygen, it gave you magnesium oxide. Clear? After that students, we dissolved magnesium oxide in water and checked its नेचर. तो हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? हमने ये देखा था कि रेड लिटमस टर्न्ड इनटू ब्लू. दैट मींस द मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. नॉन मेटालिक ऑक्साइड के लिए हमने क्या लिया था? हमने लिया था सल्फर. सल्फर का रिएक्शन कराया था ऑक्सीजन के साथ. वी बर्न सल्फर इन एयर एंड वी found out that the product formed is sulfur dioxide gas. Then we dissolved sulfur dioxide gas in water and we found that it converted into sulfurous acid which turned blue litmus red. So what was its nature? Acidic. तो पहले बेसिक फिर एसिडिक. कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स? पहले बेसिक फिर एसिडिक. ऑप्शन सी इज आर correct answer. All right, let's move on to our next one now. Sodium is stored in dash as it reacts vigorously with oxygen and water. तो स्टूडेंट्स क्या करा था यहाँ पर हमने? ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट ना करे इसलिए उसे हम क्या करते थे? किस में स्टोर करके रखते थे? एक तेल में रखते थे. कौन सा तेल? ऐसा वैसा तेल नहीं. We used to store it in kerosene. Clear? And our final question. Iodine solution is used as an antiseptic. True or false? Absolutely true. हमने देखा था आयोडीन सोल्यूशन को वुंड्स पे हम अप्लाई करते ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, तो ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन हियर. सो होपफुली यू एंजॉयड वाचिंग दिस वन. आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.